ख्वातीनो हज़रात, प्रोग्राम उम्मीद नौ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आर्डन जॉशर और मौजूद हूं पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जानी और पहचानी जाती हैं। He is a well-renowned politician and a social activist. He is the founder of Support Children, chairman Pakistan United Christian Movement. He has been awarded with the most excellent order of the British Empire. इसके साथ साथ उनको UK Civil Services Awards भी मिल चुके हैं और recently he was nominated and is now the member of National Commission Rights for Pakistan. तो yes, ladies and gentlemen, आपकी आज मुलाकात हम करवाएंगे Mr. Albert David से। सर कैसे हैं आप? Thank you very much. I'm good and hope you are good too. Thank you very much. It's actually an honor to be here. Same. I think it's always good to talk to you. Thank you very much. अच्छा सर, if you go back to the past, you are a social activist. तो वो क्या ऐसा moment था that touched your heart और you thought कि नहीं, I should start something? Okay. Yeah. Good question. I mean, for that we will have to go back to 1991 when I was working with World Vision International और मैं उनका एक प्रोजेक्ट था एक इस्लामाबाद की एक स्लम में, उसको मैं हेड कर रहा था और मेरे उस प्रोजेक्ट से तकरीबन कोई 250 ऐसे क्रिश्चियन बच्चे थे जो स्कूल गोइंग थे और जिनकी सारी जो फंडिंग है, उनकी एजुकेशन का जो एक्सपेंस है, एवरीथिंग वाज बीइंग paid by World Vision International. So we thought that those children had a very good future. वो ऐसे बच्चे थे जिनका कोई as such हमें कोई future नज़र नहीं आता था, but because of the funding of World Vision International और उनकी support की वजह से they were going to good schools और वो सिर्फ स्कूल नहीं जा रहे थे बल्कि उनकी nutrition और उनकी after school जो उनकी studies थी वो सारा कुछ उस project से it was being taken care by. Unfortunately, due to some political reasons, World Vision International को उस वक्त अपने operations पाकिस्तान में बंद करने पड़े और उसका नुकसान ये हुआ कि वो 250 बच्चे जो हैं उनका स्कूल ख़त्म हो गया. The parents were not able to sustain the education. उसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे स्कूल नहीं गए उसके बाद, लेकिन the लेवल ऑफ एजुकेशन या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उन्हें मिल रही थी वो सर्टनली, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनका स्कूल, उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई. एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि हम हमेशा क्या बाहर ही देखते रहेंगे कि बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, वो सपोर्ट करेगी और फिर हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे. So that was the moment, when I thought कि नहीं, we have to do something and we have to do something locally, जो हम खुद अपने resources के साथ करें और जहाँ से हम खुद अपने बच्चों को उनकी ख़ास तौर पे उनकी जो education है उसको कर सकें. So that was the defining moment which sort of brought a change into my own thinking. जो main जो उसमें सोच थी change की वो यही थी कि we should not always look towards the west or जो foreign countries हैं उन्हीं की तरफ हम देखें कि वो support करेंगे तो फिर हम कुछ कर सकते हैं. We should be sort of thinking and working within our own resources to do stuff. So that was the defining moment. Right. और उसी से ही फिर Support Children originate हुआ और अभी तक Support Children की क्या contributions रह चुकी हैं towards community building? I would say कि support, देखिए मैंने आपको कहा कि 91 में that thing came and sort of I started thinking of doing something locally, but then sort of it took a few years. I was very young at that time. मेरे पास इतने resources नहीं थे, and sort of I was building my own life as well. So it took some years for me to उस सोच को या उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए. And after a few years when I sort of got settled into my own life और चीज़ें कुछ मुझे settled होती हुई नज़र आना शुरू हुई, तो then we initiated Support Children को हमने इनिशिएट किया. और जो हमारा पहला अगेन मैं कहूँगा, मैं फिर वापस जाऊँगा कि कुछ लम्हे ऐसे, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको कुछ करने के लिए फौरी तौर पे दे एक्ट एज वो
क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह वो होते हैं कि दे गिव यू दैट एनर्जी। तो वो यही हुआ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको शू बॉक्स प्रोजेक्ट कहा जाता है, और उसमें बच्चों को क्रिसमस पे कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो डाउन ट्रॉडन फैमिलीज से आते हैं, उनको वो दिए जाते हैं। तो आई हर्ड अबाउट कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे बच्चों को ये शू बॉक्सेस जो हैं वो दे रहे हैं। बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द फील्ड, सो आई न्यू कि कहाँ पे ज़रूरत है और बच्चों को देने चाहिए। तो आई कॉन्टैक्टेड दैट ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने उन्हें कहा कि जी आप दे रहे हैं तो कैन यू सॉर्ट ऑफ कम इनटू आवर कम्युनिटीज एज वेल, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और वो बच्चे वाकई ज़रूरतमंद हैं, और इट विल बी अ ह्यूज उनके लिए मोरल बूस्टिंग होगी क्रिसमस पे, गेटिंग अ गिफ्ट एंड ऑल दैट। अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट अग्री। उनका एक अपना था कि हम किन इलाकों में कर रहे हैं, हम किन बच्चों को दे रहे हैं। तो वहाँ से फिर आई जस्ट थॉट कि फिर अगेन वही सोच कि क्यों हम लोकली क्यों नहीं कर सकते। सो दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट जब हमने सपोर्ट चिल्ड्रन का एक पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग द जॉयज, राइट? ठीक है। और शेयरिंग द जॉयज में ये था कि वी हैव टू शेयर द ब्लेसिंग्स, जो हमारी अपनी है, हमारी अपनी खुशियाँ जो हैं वो हम शेयर करेंगे उन बच्चों के साथ जो लेस फॉर्चुनेट हैं, उन बच्चों के साथ जिनके पेरेंट्स शायद उन्हें क्रिसमस पे कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते, कुछ सूरतों में उन्हें नए कपड़े तक नहीं मिलते। तो दैट वाज द मोमेंट जब हमने शेयरिंग द जॉयज प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। एंड वी स्टार्टेड इट विद इन आवर ओन कम्युनिटी। तो वो फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो हमने देखा जिन कम्युनिटीज़ में हम काम करते थे कि वो गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है अपने बच्चों को क्रिसमस पे लेके दें, वो उनके लिए शायद प्रॉपर कपड़े तक अरेंज नहीं कर सकते थे, प्रॉपर मील्स तक अरेंज नहीं होते। तो देन वी जस्ट थॉट के व्हाई नॉट वी डू इट आवरसेल्व्स। तो वो फिर हमारा प्रोजेक्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ, शेयरिंग द जॉयज। और फिर उस पर हमने काम शुरू किया। वी started going out to our own people in our own community, who had been sort of blessed और जिनके पास रिसोर्सेज थे, एंड वी सॉर्ट ऑफ स्पोक टू देम। हमने कुछ इवेंट्स अरेंज किए जिसमें हम फंड रेजर्स अरेंज करते थे। एंड बिलीव मी कि विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स वी वर एबल टू हेल्प हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, where I mean I shouldn't say the word help, sort of we were able to bring the joys of Christmas, वो जो शेयरिंग की जॉयज होती हैं, वो वो जो एक क्रिसमस क्या है, क्रिसमस इज शेयरिंग। Christmas क्या है? I mean, Christmas is taking the hope to the sort of less fortunate, to the people who don't have hope. So within sort of a few years we started doing that. और वहाँ से फिर support children जो है उसने वो एक formally उसने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर then we started working on education. Again sort of we were a very small organization, तो हम बहुत छोटे पैमाने पे what we started to do was to stand in gaps. जहाँ पे हमें गैप नज़र आता था, अगर कोई बच्चा है वो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स फी नहीं दे सकते, तो हमने उसकी फ़ीस देनी शुरू कर दी। हमने बुक्स देनी शुरू कर दी बच्चों को हर साल। फिर हमने बच्चों के लिए अरेंज करना शुरू कर दिया, समर कैंप्स अरेंज करना शुरू कर दिया। तो फोकस हमारा एजुकेशन ही रहा है शुरू से, और ब्रिजिंग द गैप्स कि हम कहाँ पे खड़े हो सकते हैं। बट और सपोर्ट इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी जगह कम्युनिटी में भी बनाता गया। एंड द गुड थिंग वाज कि सपोर्ट गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी। सबसे बड़ी जो चीज़ वो ये थी कि people started believing that if they were going to contribute financially, that would go to the people who deserve, go to the children who deserve. तो उससे ये हुआ कि सपोर्ट का एक जो लोकल कम्युनिटी में है हमारी एक एक अपना एक जगह बननी शुरू हो गई। Sort of we had confidence of the community, we had confidence of the people who wanted to come and share and sort of give. तो वो एक हुआ कि एक उसकी एक इमेज बिल्डिंग जो है सपोर्ट की स्टार्ट हो गई। And I would just want to share one important aspect of sharing the joys. एक क्रिसमस पे I was in the community और बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे थे। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि इस क्रिसमस पे हम आपके लिए क्या करें। तो आई डोंट नो उसको वो कहाँ से हुआ। उसने कहा कि सर हमने मैकडॉनल्ड्स जाना है। उस वक्त मैकडॉनल्ड्स रावलपिंडी में बिल्कुल नया आया था।
And I came back and I thought कि क्यों इस बच्चे ने ये क्यों कहा कि हमने मैकडॉनल्ड जाना है. तो then when we reflected, तो हमने हुआ कि बिल्कुल, I mean it is quite possible कि एक peer pressure होता है, एक नई चीज़ है, वो बच्चों के लिए attraction है, and we decided कि ठीक है, इस दफ़ा हम बच्चों को वहाँ पे लेके जाएंगे. And the thing was कि we just thought कि why not, हम उसको लेके जाएं, और कल अगर कोई बच्चा उसको बाहर से कोई कहता है कि यार I went to McDonald's, उस वक्त McDonald's एक status symbol था. Exactly. So he should have that courage, or he should have that confidence to say, I mean it's not a big deal, मैं भी गया हूँ. Exactly. मैं भी गया हूँ. Sort of to give that confidence. तो उस क्रिसमस पे जो हमने अपना शेयरिंग द जॉयज वाला जो प्रोजेक्ट है या जो इवेंट है, we did it in McDonald's. And we were able to take 550 children. 550 children. Wow. उस दिन हम McDonald's लेके गए, and उस दिन we worked with McDonald's. उन्होंने उसको पूरा क्रिसमस डेकोरेट किया, क्रिसमस के उसको फील एक दी, और दोपहर के वक्त sort of they did not entertain anyone else. They just entertained the children sort of who went with us. So that these were some of the moments जो मेरे लिए बड़े, उनको मैं आज भी जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो it gives me goosebumps के यार what did we do, sort of it might just be a small thing, but the confidence it gives, so that was again something that we were able to achieve. और फिर वो उसको हमने जारी रखा, और फिर हमने कोशिश ये की कि अगर हम गिफ्ट भी दे रहे हैं तो कुछ ज़रूरत का गिफ्ट दें, स्टेशनरी दें, ऐसे दें कि एक तो उन्हें गिफ्ट भी मिले, लेकिन साथ साथ उनकी एक रियल नीड है वो भी पूरी होती है. बिल्कुल. और सपोर्ट चिल्ड्रन की एक बहुत ज़बरदस्त टैगलाइन या मोटो, if we all do a little, we can do a lot. And this example reflects just that. Exactly. और थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में शेयर करना चाहूँ, I was fortunate enough to be a part of that. And I've witnessed that myself. तब शायद मैं भी उन बच्चों के जितना ही था, but I do remember a few chunks of it. Like, and that was one experience that we can never forget. सर, इसी के साथ साथ you started a political party as well, Pakistan United Christian Movement. अगर थोड़ा सा आप उसके बारे में हमारे साथ शेयर करें. Pakistan United Christian Movement जो है ना, वो I wouldn't call it a party, I would call it a vision. I would call it a movement. और उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, and we are now into almost into 2010 की शुरुआत है और 12 की शुरुआत है, जहाँ पे I've been working with the community for a long time, had that political sort of background as well, my father being a politician, एक social activist होते होते बहुत सारी चीज़ों का इदराक होना शुरू हो गया कि क्या है. और उसमें एक जो बड़ी चीज़ हमने देखना शुरू कर दी, मेरे साथ बहुत सारे और साथियों ने, हमने देखा कि there was a gap, और हम पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो नेशनल पॉलिटिकल कैनवस है उसके ऊपर हम नज़र कहीं नहीं आ रहे, और हमारी कोई उस पर विजिबिलिटी नहीं है. और हमने उसके ऊपर सोचना शुरू किया कि क्या रीजंस हैं. I wouldn't say that people were not there, people were already there, they were working, but the real engagement from the community, the real engagement from young people wasn't over there. वो मैं चीज़ें सुनता था अक्सर के नौजवानों को ये कहा जाता था कि नहीं बेटा, सियासत में नहीं जाना, ये बहुत गंदी चीज़ है. ठीक है, तो मैं अक्सर ये सोचा करता था कि अगर हमारे पढ़े लिखे नौजवान सियासत में नहीं आएंगे तो फिर तब्दीली कैसे आएगी. फिर वही लोग जो जिनकी अवेयरनेस शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, जिनका एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं, वो आके हमें रिप्रेजेंट करते रहेंगे, तो इन द एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर as a nation in this country. तो वो फिर we started working on an initiative कि हम किस तरह अपने, ख़ास तौर पे अपने क्रिश्चियन नौजवान को जो पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें, उसको थोड़ा सा उसमें वो एनर्जी वापस लेकर आएँ, और उसको बताएं कि उसने पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो सीन है, जो पॉलिटिकल कैनवस है, उसका हिस्सा बनना है. और जब तक वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा, हम शायद से ही पढ़ी लिखी क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत जो है वो आगे नहीं ला सकेंगे. तो उसको सामने रख के फिर हमने पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट की बुनियाद रखी. बट द मेन आइडिया ओवर देयर वाज to get the Pakistani Christians, number one, united on a platform, and number two, to get them visibly, seen on the national political
फोरम्स एंड नेशनल पॉलिटिकल जो हमारा एक सीन है उसके ऊपर, और फिर सबसे बढ़ के कि उनका एक एक आई वुड से वाइब्रेंट किस्म का रोल हो इस सारे में, तो उसको सामने रख के फिर हमने पाकिस्तान एजुकेशन मूवमेंट को शुरू की। लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो एक और चीज़ थी जिसको मैंने ये सामने रखा कि it should not just have a Christian identity, it should be something national, जो हमेशा से मेरा ये रहा है। तो इसलिए फिर हमने जो पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट का जो स्लोगन है उसको ये रखा कि मैं भी पाकिस्तान, और कि मैं भी पाकिस्तान के हर उस इस इशू में इन्वॉल्व हूँ, मैं भी पाकिस्तान के हर उस मसले में इन्वॉल्व हूँ जो पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट करता है, और मैं ना सिर्फ उस मसले में इन्वॉल्व हूँ बल्कि मैं हल हूँ उसका, मैं उसका हल हूँ, और वो हल मेरी तरफ से होके गुजरता है, मेरी शमूलियत की वजह से वो हल होगा। तो वो एक मैं भी पाकिस्तान हूँ के स्लोगन के साथ हमने पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट को शुरू किया। एंड अगेन सॉर्ट ऑफ हम चाहते थे कि वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है वो इंश्योर हो, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो हो, सोशल इक्वालिटी हो। इक्वालिटी को हमने बहुत ध्यान में रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरे राइट्स देता है एज इक्वल सिटीजन, उसको प्रमोट किया जाए। सो इन चीज़ों को सामने रख के हमने पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट की बुनियाद रखी। एंड वन ऑफ द गुड थिंग्स आई नो कि बहुत सारे मैसेज बहुत सारे क्रिश्चियन नौजवानों को जानता हूँ, पढ़े लिखे नौजवानों को जानता हूँ जिनके साथ वेरी डायरेक्टली इंटरेक्शन हुआ, एंड आई वाज एबल टू कन्विंस देम कि नहीं, यू हैव टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और मैं उन्हें हमेशा ये कहता था कि सियासत गंदी नहीं होती, सियासतदान गंदा हो सकता है, ठीक है? It is the person, it is the person, and I used to give them the examples of कायदे आज़म, वो तो पॉलिटिशियन थे ना एक, एग्जैक्टली, ठीक है? और क्या मतलब उनकी सियासत नहीं थी, नहीं, इट इज हाउ यू डू इट, इट इज अप टू यू कि आप उस रंग में रंगना चाहते हैं कि नहीं। तो एज लॉन्ग एज आपका विजन क्लियर है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको उस रंग में रंगना पड़ेगा, आप बहुत पॉजिटिव रह के भी ये सारा काम कर सकते हैं। एंड अगेन जस्ट कमिंग बैक ऑन दैट पॉइंट के कायदे आज़म पढ़े लिखे थे, वाज वो फॉरेन लॉ में उनकी डिग्री थी, वहाँ से यूके से उन्होंने की हुई थी। आई मीन ही कुड हैव जस्ट हैड अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ, एक बहुत अच्छे वकील थे वो, आराम से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, बट ही चोज टू फाइट फॉर हिज पीपल and he chose to sort of to raise voice for them, and what was the result? Very few, and I think we can count them on fingers, there have been very few people of leaders in the world who have changed the geography of the world, and Qaid Azam is one of those people कि जिन्होंने इस दुनिया का जुग्राफिया तब्दील किया, ठीक है? लिबरेशन इज समथिंग डिफरेंट, कि आप किसी मुल्क के आपके ऊपर मुसल्लत है और आप आज़ादी हासिल, दैट इज़ डिफरेंट। एक नया मुल्क बना देना, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड दैट इज़ व्हाट कायद आज़म अचीव्ड, एंड ही वाज अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ लीडर। सो ये चीज़ें जो हैं सॉर्ट ऑफ आई केप्ट ऑन शेयरिंग विद यूथ, और मुझे अभी भी आई फील एट टाइम्स मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान अब हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी जो क्रिश्चियंस की जो पॉलिटिक्स है, जो मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, उसमें अच्छे पढ़े लिखे क्रिश्चियन नौजवान हैं, उनको हम देख रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट माय गोल हैज बीन, और माय ऑब्जेक्टिव हैज बीन, दैट वी नीड गुड एजुकेटेड क्रिश्चियन लीडर्स कमिंग इन फ्रंट एंड रिप्रेजेंटिंग वाओ। और इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच। जैसे आपने बात की कि सियासत गंदी नहीं, सियासतदान हो सकते हैं, मतलब it's similar to like 4 + 4 is 8, 5 + 3 is 8, so it's all about how you see things, आपकी अपनी अप्रोच कैसी है। और मैं उसमें अक्सर just taking on from your example, I usually say if you write 6 over here, for me it's 6, for you it's 9, exactly, ठीक है? It's how you see, how different people see, ठीक है? तो exactly yes, I agree कि अप्रोच क्या आपकी, right। और recently एक और भी इवेंट हुआ, एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट आपकी रही, एंड दैट वाज टू बी अ पार्ट, अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स कमीशन फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले तो ह्यूज कांग्रेचुलेशन, थैंक यू।
if you could just, what was the whole idea behind it? Again, sort of, for me, it was something which just came out of the blue. I was just asked to send my profile, which I did, and then sort of after about a month, sort of, I read it in the newspaper that I had been nominated as a member of the National Commission for Minorities. So, again, sort of, it was an achievement. इतने अरसे जदोजहद करने के बाद, काम करने के बाद, you finally sort of, get that sense of satisfaction कि अब national level पे आपकी contribution को acknowledge किया गया है, and you have become part of one of the I would say कि the highest body जो minorities की पाकिस्तान में आप उसके member हैं, and you look at it कि पूरे पाकिस्तान में से 3 Christian हैं, and you are one of those. तो वो it was a self satisfaction, but उसके साथ every जो भी आपको जिंदगी में एक नई कामयाबी मिलती है, अपने साथ challenges लेकर आती है, आपके साथ अपने साथ responsibilities लेकर आती है, कोई भी जो आपको in other words designation मिलता है, it brings responsibility and challenges. तो इसमें भी बहुत सारे challenges हैं, and we are sort of, as a member, I'm working with other members of the commission, and our the first objective जो हमारा है और जिसको हमने सारे members ने मिलके और I've been pushing that from the day one, and sort of when I met the chairman of the commission, उनको भी मैंने यही कहा था कि हमारा जो objective है, let's get this commission the backing of act of parliament, ताकि ये एक आईनी और कानूनी हैसियत बन जाए, ताकि कमीशन को वो इख्तियार वो पावर मिल जाए, ताकि हम जो करना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें with the power of the constitution at our back. So जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा वो यही है, we are working on it. There have been a couple of meetings, एक कमेटी भी फॉर्म हो गई है, so we are working on the legislation. हम एक ड्राफ्ट बिल जो है वो खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द गवर्नमेंट को पेश करेंगे. गवर्नमेंट की हमें पॉलिटिकल विल भी नज़र आ रही है अभी, तो वी जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ बैंक ऑन दैट कि हम इसकी जो है वो लेजिस्लेशन करवा लें, एंड वंस सॉर्ट ऑफ देयर इज लेजिस्लेशन बैकिंग at our backs, I think then we would be more useful as a commission. So that is the prime objective, at least for me at the minute. But on the other hand, the commission has a responsibility towards some work on forced conversions as well. Again, sort of that has been very close to my heart. I've worked a lot on forced marriages, forced conversions. Recently, sort of, I've dealt a few cases. So that is again, very close to my heart, and I feel like that we as a commission, इस तरह के जो 2-3 इशू हैं जो डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं, उसमें से एक ये फोर्स्ड कन्वर्जन्स वाला और अंडर एज मैरिजेस वाला जो है, इस पे हमने काम शुरू कर दिया है. एंड लेट्स होप कि हम इस पे कोई कंक्रीट, कोई टैंजिबल किस्म का जो है वो काम कर सकें. एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई थिंक दैट वी शुड बी डूइंग एंड फोकसिंग ऑन. Sounds great. All the very best for that. और तो आपने अभी जिक्र किया forced conversions और forced marriages पर. You have a lot of experience in that with the embassy, और आपको award भी मिला MBE का. So just talk us through कि किस तरह से, I mean, how did you get yourself engaged in that? Or again, sort of, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट पहले से ही था on the issue of human rights, so this was something which came up as an issue, and I because having that background and having that एक eagerness to sort of work for the rights of people, and to work with young people, so this was an opportunity for me to contribute, given that I had a lots of the local knowledge, and it helped me to work with the British High Commission and the Foreign and Commonwealth Office back in London, back in the UK, अपने उस सारे उस local knowledge को share करने में, and I was able to contribute into the overall policy of the Foreign Office, the forced marriages के ऊपर, and मुझे exact number याद नहीं है, but I think
it wouldn't be less than about 500 wow young people. There were girls and boys both, जिनको हमने forced marriages में से निकाला. I mean, they had either been forced into a marriage or they were going to be, forced into a marriage. They were potential victims. उनको हमने literally rescue किया, from their houses, and we were able to give them an opportunity to start a new life. We were able to sort of ensure that those young people had the right to choose, had the right sort of कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला कर सकें. So that was the work that I did, and in recognition of that work, and that contribution, I think in 2005, and this year we are celebrating 15 years of that achievement, that I was awarded the Most Excellent Order of the British Empire. This is something which is done directly by the Queen herself, and I was the first Pakistani Christian, the indigenous Pakistani Christian, I कहूँगा, to have received this award, and the youngest. So that was a huge achievement. लेकिन उसके साथ यहाँ पे काम नहीं रुका. I kept on working, and that then उसका जो रिजल्ट ये आया कि बाद में मुझे फिर UK जो सिविल सर्विस अवार्ड है, which is the highest civil service award, वो I won 2 awards. एक इनोवेशन पे वो मैंने अवार्ड जीता, और एक डाइवर्सिटी पे. तो that is how the work has been recognized on forced marriages. और अब जैसा कि मैंने कहा कि the focus is now, it has been for a few years, to help girls and boys, from a majority of them girls, who are forced to marry, and who are forced to convert to another religion उसके लिए. So keeping all that experience, that is my next objective, कि हम अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उनके लिए कोई काम जो है कर सकते. बिल्कुल सर. एंड जस्ट टू ऐड टू इट, जो अभी मिस्टर एल्बर्ट ने बताया हमें, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. यूट्यूब पे आज भी BBC की एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है जिसमें पूरा सर का एक रेस्क्यू मिशन कवर किया हुआ है BBC ने. डू हैव अ लुक एट इट, और यू विल सी कि जो वो बात कह रहे हैं, इसके लिए आपको कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी डेडिकेशन चाहिए, एंड it's something incredible. Do have a look at it. Do you think, sir, how can we contribute towards community empowerment? I think हमारी जो सबसे बड़ी contribution है वो ये होनी चाहिए कि we should start thinking as Pakistan. ठीक है, we should start thinking. हमें पहले अपनी सोच को तब्दील on a broader perspective. ठीक है, on a broader perspective, हम पाकिस्तानी, and the important thing is that we are indigenous Pakistan. ठीक है, हम में से अक्सरियत, अगर हम पार्टीशन को देखें ना, तो पार्टीशन के टाइम पे हिजरत जो हुई, the people who came from India, I don't think a lots of Christians came from India. The Christians who were in India, they stayed in India. The Christians who were in Pakistan, they stayed in Pakistan. और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से कोई क्रिश्चियंस इंडिया चले गए, और इंडिया से को क्रिश्चियंस पाकिस्तान आ गए. So we are the indigenous sons of this land, जो पाकिस्तान बनने से पहले रह रहे थे. So हमारा हक रियासत पे, इस मट्टी पे उतना ही है जितना किसी और का है. सो आई थिंक पहली तब्दीली तो हमें अपनी सोच में लेकर आनी है. एंड आई थिंक तब्दीली उसी वक्त आती है जब हम अपनी सोच तब्दील करते हैं और फिर दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं. अगर हम अपनी सोच तब्दील ना करें और सिर्फ दूसरों को तब्दील करने की कोशिश करते रहें, तो फिर शायद पॉसिबल नहीं है. आई थिंक वी शुड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ वे दैट वेयर वी स्टार्ट ओन पाकिस्तान. हम पाकिस्तान के हर मसले को अपना मसला समझें, हम पाकिस्तान को अपना मुल्क समझें. हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पढ़ लूँगा मैं तो उसके बाद मैं बाहर चला जाऊँगा और मैं कहीं और सेटल हो जाऊँगा. लेकिन उसमें बहुत बड़ा इशू है, हमारा ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ है. अगर आप देखें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अ फ्यू डेकेड्स आफ्टर दैट, so you will see there were lots of educated Pakistanis who were in
लॉट्स ऑफ फील्ड, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड के अंदर। सिविल सर्विसेज में भी आपको बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस नजर आएंगे, बट वी हैड अ ब्रेन ड्रेन और वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ गए। अगेन सॉर्ट ऑफ एवरीवन हैज द राइट कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, बट देन वी हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हमने अपनी कौम के बारे में भी सोचना है। तो आई थिंक दैट इज हाउ वी स्टार्ट contributing into our community, that अगर हमने यहाँ पे पढ़ा है, हमने यहाँ से कुछ लिया, then we have to give it back to our community and give it back to the country। ठीक है, वो किसी का बड़ा मशहूर कॉल है कि ये ना देखें कि मुल्क ने आपको क्या दिया है, आप ये देखें कि आप मुल्क को क्या दिया है। sort of so I think that sense we have to build that sense of responsibility into our youth, which I think they are talented, they are intelligent, they now they are part of the bigger picture। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, उन्हें पता है कि दुनिया के मसाइल क्या हैं, and I think we should it's अब ये एक ऐसा वो मैं ऐसे कहूँगा जिक्सा पजल है जहाँ पे हम फिट होते हैं और हमें देखना है कि हमने कहाँ पे फिट होना है ताकि हम उस पूरी तस्वीर को मुकम्मल कर सकें। आई थिंक हमने अपने आप को खुद उस पजल से बाहर रखा हुआ है, and until we come and be part of that jigsaw puzzle to complete Pakistan, और पाकिस्तान को एक a country that is progressive, a country that is developed, a country where everyone's rights are protected, a country that is in a way जो international community में जिसका एक मकाम है कि it's a country sort of that ensures equality and give rights to its people, where people live peacefully, और वहाँ पे everyone is respected, and I think we can contribute a lot as a nation। I think हम criticize बहुत करते हैं, लेकिन चीज़ों को चेंज करने के लिए अपना contribution नहीं करते। So if we start using our abilities more positively and in rebuilding or building the nation as a whole, क्योंकि just keep in mind कि हमारी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। If Pakistan develops, we develop, right? So we cannot minus ourselves or we cannot minus ourselves from Pakistan and think कि हम तरक्की कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। We will हमारी जो progress है, हमारी जो development है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। Right, thank you very much, sir. Thank you very much. Just one last message program उम्मीद-ए-नौ के हवाले से। I think it's a very good initiative, and I think it's good that we can what you are trying to do is sort of to bring people who have जिनकी कोई पॉजिटिव सोच है, जिन्होंने कुछ अपनी उस सोच को यूज़ करके इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया है, अपनी community के लिए so people should know about those people, and especially young people should know about those people, which I think acts as an inspiration for lots of people to do things and do things differently and try different things। और वो एक एक confidence level आता है कि if he can do it, then I can do it as well। Exactly। So I think it's a very good initiative। God bless you with it, and may you be able to sort of promote Pakistani Christians in Pakistan। Thank you very much, sir. Thank you very much. This sums up our program for today। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें जो मैंने सीखी आपने भी सीखी होंगी, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ, और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। प्रोग्राम उम्मीद-ए-नौ में। खुदा हाफ़िज़।